Yo, Rajasthan Royals have pulled off a massive heist at the Chepauk Stadium. And guys, welcome to Cricket Caviar. Myself, Shikhar, the big Rajasthan Royals fan, and along with me, Kunal, the Mumbai Indians fan. And what a close win for both our teams in back-to-back days. Kunal, Yeah, what was your yeah, feeling well, when seven was needed of three balls? You certainly thought Dhoni will do it. honestly, yeah, Sandeep was struggling, and it felt like he was struggling at that point of time. I thought 7 of 3 should be. Sorry, yeah, and I honestly thought it might be very easy for them, but yeah, great comeback by Sandeep. I mean, Sandeep Sharma is not someone who's playing for the first time. He has been there for a while, been in like multiple IPL games, so he did bring in that experience, and to bowl three back-to-back Yorkers against Jadeja and Dhoni is a big feat. That to Chinnaswamy must have been under a lot of pressure. This really shows that RR as a team is pretty confident and they really believe in themselves. And yeah, Sandeep can see Sharma also is today a as well. fucking beautiful legend and typical Rajasthan Royals legend, underrated stuff. Oh man, this win has got me pure Rajasthan Royals feels. Yeah, after Dhoni actually came to the crease, I thought that yeah, I mean Rajasthan is more or less, I mean CSK is more or less done, and Dhoni and Jadeja could not really connect well. But it's commendable out what Dhoni did. I mean the way Dhoni hit those sixes, oh my god. I mean, it's slightly. I mean, I was not expecting this at all. I mean, for someone like Dhoni who does not really play domestic cricket or anything, for him to still come and perform, that's a feat in itself. Yeah, Dhoni was awesome, man. I thought the match was done. CSK were favorites at the 10 over mark. I would say when Rahane and Conway were batting, I think Yeah, the yeah, they had wickets the in hand then, yeah, and the flow uh, was going pretty well. It was the in flow their was favor. going pretty well, and actually, And Ranji uske is really missing Bolt today, though, right? I mean, yeah. you have to say there's not a full bowling lineup. Without Bolt, their bowling is like, three-fourth maybe of what it And actually is. last over, I thought like Kuldeep Sen really bowled well today. He gave just 7 runs in 2 overs or something like that. And actually, I was expecting him to be bowling the last over. So Kuldeep Sen was pretty obvious choice, and I was so pissed off at Sanju Samson for giving it to Sandeep Sharma. And it seems कि कुछ तो हुआ है उसको injury. He got injured, Kuldeep Sen, and he left the field uh, in the Oh, 17th over or oh, something. okay. So this was not because of experience that No, I RR think decided to go with him. It was because of yeah, nobody I else don't was. know. Yeah, experience is one thing, but yeah, man, I expected Kuldeep Sen because last year also he bowled a final over to Stoinis and defended Okay. the runs. So I was expecting that again, but yeah, man, Sanju Samson just went with his instinct here, and what a win! I mean, just amazing, amazing It's win. never easy to win in Chepauk against CSK, and yeah, the way Hmm. Rajasthan did it was pretty good. And honestly, I mean, you do have to give it to Rajasthan. I mean, they did play well starting, say, Yeah, yeah. and otherwise Starting, CSK batting uh, was I slightly felt disappointing. again, coming to the first innings, like Padikkal again, complicated things. Like I was saying कि पडिक्कल का वहां पे जगह बनता नहीं है टीम में, लेकिन उसको फोर्स फिट किए जा रहे हैं और वहां पे मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स लॉस्ट द फ्लो ऑफ द इनिंग्स 8 ओवर्स में 86 के बाद नेक्स्ट 12 ओवर्स में सिर्फ 83 रन बनाना तो 80 रन बनाना एग्जैक्टली It's very was a crime. I feel it was a big crime. 12 overs में 89. So that was a I mean अश्विन को फिर से promotion देना. But in the end, मतलब कि the other way of looking at it is actually Ashwin played a good knock of 30 in 22 balls and actually stabilized the innings. तो दोनों तरफ से देख सकते हैं. देवांशु भाई, what's your reaction? We already discussed the last over. I'm waiting for you guys. No, I didn't see the last 10 overs because Oh. actually it was so much due. So I mean, RR is lucky to actually win that match. But there was I so mean, much due honestly, from the last 5 overs of RR inning itself. Bowlers were not able to grip the ball. So I mean, it's purely luck. It's So purely yeah, luck or and it's I purely skills, I would say. I I I saw the last interview with Sandeep. He told that it was not working from
from over the wicket. Oh, So he great tried point. to round the wicket. I think that is wonderful thinking. I mean, he at least tried something different, which no other bowler, like let's take example of Yash Dayal. Yash didn't Dayal, I try. was thinking the same. Yes, yes. He was only bowling over the wicket. So that was some kind of thinking, and I think it comes with experience. He has played 10 years of IPL cricket almost, so he knows what he is doing. And also batting wise, I mean, I think Ashwin was sent ahead just to make sure that no other wicket falls to Ravindra Jadeja, because he was the threat on that wicket. Jadeja was And your looking point pretty- is also correct that Hetmeyer might have countered it much better, but you never know. And anyway, Chennai boy wins man of the match, so I think Chennai will be happy in that case. Absolutely. It was a Mumbai boy who won the man of the match in Mumbai. And now Chennai boy doing it in Chennai. But round the wicket wala point actually बहुत interesting है. Just to tell you, so the first three balls Sandeep Sharma bowled over the wicket and it was right into Dhoni's arc. मतलब धोनी ऐसे swing कर रहा है और उसके एकदम आर्क में बॉल मतलब थोड़ा इन स्विंग होके उसके एकदम आर्क में आ रही है और वो स्विंग कर रहे हैं, हिट लग रही है भाई. चौके तो वो मारता ही नहीं है भाई, उसके दोनों बॉल कैसे कैसे तो वो छक्के हो गए. मतलब भाई और कोई बैट्समैन होता वो अभी मैंने रिप्ले देखा, मैंने बोला यार ये चौका नहीं गया क्या, मतलब वो क्या बाउंड्री आगे आ गई थी क्या थोड़ी सी देर के लिए. भाई पता नहीं कैसे मारता है वो भाई, छक्के ही जाते हैं भाई वो वाले शॉट्स. ओ भाई जयदेव उनदकट को भी लास्ट ईयर ऐसे ही मारा था भाई उसने. मतलब अगेन ये पड्डीकल वाला जो पॉइंट था एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा. आई थिंक अब उसको खिलाया क्योंकि पराग को ड्रॉप किया उन्होंने, ठीक है, विच इटसेल्फ डजंट मेक एनी सेंस. आप पराग को कम से कम 5 मैच तो दो, क्योंकि 14 गेम give him 5 games. Back of really good form as well in domestic. हाँ, आप उसको 5 गेम्स तो दो और फिर आप पड्डीकल को जस्ट टू लाइक आई थिंक प्लीज इंडियन क्रिकेट कि भाई आप पड्डीकल को क्यों नहीं खिला रहे हो, आप उसको खिलाया और आपने 3 पे भेज दिया. जबकि वहां पे वैसे तो अच्छा खेला है, इसी को प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट क्या उसकी रिक्वायरमेंट तब अच्छी होती जब जडेजा बॉलिंग कर रहा था लेफ्ट आर्म, तो बेसिकली वो उसके लिए मैचअप हो सकता था. उस समय संजू सैमसन को भेज देते उस समय, तो पता नहीं उनका क्या था, बट दे वन, सो आई थिंक इट्स ओके. एंड आई थिंक वो नहीं एक्चुअली पड्डीकल जब आया ना टीम लिस्ट में तो सब लोग खुश हो गए. संजय मांजरेकर और सारे एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि थैंक गॉड पड्डीकल इज प्लेइंग ये वो. बट भाई तुम क्यों फोर्स फिट कर रहे हो. और मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं वो पॉइंट कंटिन्यू नहीं कर पाया. हाँ, तो पहला 3 बॉल जो संदीप शर्मा ने ओवर द विकेट डाला ना, तो वो आर्क में जा रहा था. उसके बाद उसने जो चेंज किया राउंड द विकेट आके, तो उसने पहला बॉल शॉर्ट डाला एक्चुअली धोनी को, स्लोअर शॉट. वो बहुत अमेजिंग था. वो एकदम यॉर्कर, उसको लग गया कि इस यॉर्कर मेरा अभी रिदम नहीं हो रहा है यॉर्कर का, तो मैं एक ट्राई करता हूँ ऐसा वाला. और उसके बाद फिर उसने जडेजा जब स्ट्राइक पे आया फिर से वो ओवर द विकेट गया, लेफ्ट आर्म एंगल. बस वो आर्क में नहीं डालना चाहता था क्योंकि जेसन होल्डर ने लास्ट 2 बॉल जडेजा को पूरा आर्क में दिया था 19th ओवर में. बहुत बेकार बॉल थी वो. वो जो 4th बॉल दी थी धोनी को, जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, वो वाली वो धोनी 6 मार देता उसको, पता नहीं कैसे बच गया. आई थिंक ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, या फिर वो इतना पीछे था कि उसका कनेक्ट नहीं हो पाया. बाकी देन लास्ट बॉल वाज वेरी गुड, वो बॉल अच्छी थी. द लास्ट बॉल ही क्लोज्ड आउट, इट वाज गुड. बट 175 बनाया राजस्थान ने, मुझे लग रहा था 195 बनने चाहिए थे. दे समहाउ लॉस्ट. 195 बनने चाहिए थे. 89 बने तो बहुत खराब है. मतलब 17 रन ज्यादा बनाए आप बॉल से, नंबर ऑफ बॉल से. So I thought it was a bad finish to the and game. as we said also that वो पराग की फील्डिंग भी मिस हो रही थी, which is very important. वो लास्ट में आया, पता है, वही मैं कुणाल को बोल रहा था, ये कुलदीप सेन, I was expecting कुलदीप सेन to bowl the last over, क्योंकि he has bowled it, he bowled 2 overs for 7 runs today. He was so good. कुलदीप सेन, he was so good. और पता नहीं लास्ट में वो कुछ इंजर्ड हो गया, पराग आ गया फील्ड पे लास्ट 3-4 ओवर के लिए. और फिर कुलदीप सेन, मैं संजू सैमसन को गाली दे रहा हूँ भाई, कुलदीप सेन को कराया नहीं उसने लास्ट ओवर. मतलब कुणाल बोल रहा है ही वेंट फॉर एक्सपीरियंस, बट कुलदीप सेन डिफेंडेड अगेंस्ट स्टॉइनिस. मतलब मैं वही बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा था यार
कुलदीप सेन करेगा और वो पेस भी है उसके पास। अच्छा वो अवेलेबल नहीं था, मैं भी ये सोचा कि इवेंट विद एक्सपीरियंस। That's what I was thinking वो about it. अवेलेबल ही नहीं था। But yeah, So, other in post match, this presentation ceremony, Sanju Samson was referring Dhoni as dead guy. He said that till the time that guy is there, nothing works. No data, nothing works. We have to respect that guy. नहीं, आज सुबह उसने फोटो भी डाला था धोनी के साथ, हाँ मतलब ही इज अ बिग धोनी फैन। तो श्रेयांश भाई, हाँ, नहीं आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो राजस्थान रॉयल्स की जीत से? नहीं भाई, मैं तेरे लिए आज मेरे को लग रहा था एक बॉल में 5 रन चाहिए तो चौका मार देगा धोनी और टाई हो जाएगा और तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओ भाई, मैं इस यार बात से दुखी हूँ। मजा आता लेकिन सुपर ओवर होता तो यार सच में। सुपर ओवर आज भी नहीं हुआ भाई। ये सुपर ओवर नहीं हो रहा है, सुपर ओवर नहीं हो रहा है, ये एक अलग सिचुएशन चल रही है। ये एक अलग ही चल रहा है भाई, मतलब एक्चुअली में सारे फाइनल ओवर सुपर ओवर ही हो रहे हैं, मतलब 20वां ओवर तो सुपर ओवर ही हो रहा है लास्ट 4 मैचों से। बट जो ऋषभ शिखर को एक एक्स्ट्रा ओवर जो चाहिए वो नहीं हो रहा। आज भी मौका था, मतलब चौका पड़ जाता, 5 रन चाहिए थे तो सुपर ओवर हो जाता। बट पता है, मुझे पता था ऐसी धोनी फील आ रही चौके है, मारेगा ही नहीं भाई, उसका लगता तो छक्का जाता। अगर उसके बैट के कोने में भी लग जाता ना, मतलब थोड़ा ऐसे इधर उधर, तो भी छक्का ही जाता भाई। हाँ, वो चौका तो ये मारता ही नहीं सुपर है। सुपर ओवर की इच्छा केवल और केवल दिल्ली कैपिटल ही पूरी करवाएगी। वो रोते पड़ते ही जीतेंगे, जो भी मैच जीतेंगे वो सुपर ओवर में ही जाकर होगा। और शायद वार्नर अपना पहला 6 भी पूरे आईपीएल का सुपर ओवर में मारे। बोले तब तब भाई तो बट अश्विन ने गजब बॉलिंग करी है। पहला ओवर उसका पिट गया था, उसके बाद भी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। और चहल वापस पर्पल कैप इस सीजन अगेन, बहुत बड़ी बात। भाई मतलब मेरे को तो दुख होता है अपनी इंडियन टीम में जगह नहीं मिली बेचारे को यार। आईपीएल में लगातार 2 बार पर्पल कैप पे आ रहा है वो, और इंडियन टीम वाले उसको खिलाते ही नहीं। मतलब कई बार, मतलब बिल्कुल ये बियॉन्ड साइंस है कि क्यों उसके साथ ऐसा होता है। नहीं, अश्विन ने भाई रहाणे के साथ काफी आई नीड इंटरेस्टिंग टू बैटल किया। ड्रॉप, आई नीड टू ड्रॉप। या ओके। नहीं, अश्विन और रहाणे का बैटल काफी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने देखा, मतलब कि एक्चुअली अश्विन और जो अपना करता है एज यूजुअल, बॉलिंग करने आया और रुक गया, एक्शन पुल अवे कर दिया। और नेक्स्ट बॉल जब उसने एक्शन पूरा डाला, बॉल तो रहाणे हट गया। तो उनके बीच थोड़ा वो चल रहा था, अश्विन वर्सेस रहाणे, मतलब उस तरफ। और एक बहुत अच्छा छक्का मारा रहाणे ने, काफी अच्छा फ्लो चल रहा था। और मुझे लगता है जैम्पा को भी 2 ओवर में 24 रन पड़ गए थे, लेकिन मुझे लगता है जो थर्ड ओवर जैम्पा ने डाला है, जैम्पा वाज जस्ट ब्रिलियंट इन दैट थर्ड ओवर। एंड सैमसन की कैप्टनसी का एक वही तारीफ करूंगा कि भाई जैम्पा को उसने बैक किया 4 ओवर डालने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब, और वो भी 18वां ओवर, नॉट जस्ट एनी 4 ओवर्स, बट 18th ओवर भी जैम्पा ने डाला और उसने ठीक ही डाला। मतलब एक छक्का धोनी ने मारा, बट ओवरऑल उसने मोइन अली का जो विकेट लिया, मोइन अली का आई थिंक वाज सो क्रूशियल ऑन दिस पिच। एंड मोइन अली का विकेट was very very important and came at a very very crucial time of this match. Yeah, Moeen Ali has played very well Chennai में especially. So that was a crucial wicket. लेकिन I was expecting Zampa to do better. मतलब he's supposed to be a bowler who stops runs, is difficult to hit. लेकिन उसने he went for a lot of runs though. And But he might not play well in I was Pakistan. happy with his performance. मतलब देख, and चेन्नई में मैच तो उसने खेला, लेकिन ऐसे he's not going to play a lot वैसे। देख फर्स्ट ओवर में तो उसको 9 रन पड़ गए थे, लेकिन उसमें से एक कैच ड्रॉप था, संदीप शर्मा ने एक कॉनवे का कैच छोड़ दिया था। तो अब वो लॉन्ग टर्म में सब आरआर के लिए अच्छा ही हो गया। जितने भी कैचेस ड्रॉप हुए ना, शिवम दुबे का कैच आई थिंक एक ड्रॉप हुआ था, वो भी काफी स्लो खेला। तो ये सब थोड़ा अच्छा ही हो गया आरआर के लिए। और धोनी और जडेजा लेट आए, मतलब 15 ओवर के बाद आए, जब उनको 64 रन चाहिए थे 5 ओवर में। तो दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ आस्क। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 3 ओवर बहुत आराम से खेला, सिंगल सिंगल लेके एकदम खेला उन्होंने। तो दे मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग कि लास्ट 2 ओवर में धोएंगे, पूरी तरह बुरी तरह से धोएंगे। बट वही है, ऐसा प्लानिंग जब तुम करते हो तो यू ऑलवेज लीव इट एट द एज की कुछ भी हो सकता है। मतलब वो तो धोनी स्कूल ऑफ बैटिंग है, वही है वो, धोनी का ग्रेटनेस भी वही है इन अ वे। Anyway, guys, RR is chopping and changing too much.
Yeah, Shikhar, Bhisham will also, I think. Yeah. RR is chopping and changing too much. मतलब कि मुझे लग रहा है इतना चेंजेस करने का जरूरत नहीं. आज पराग को जो ड्रॉप किया, आई didn't think it was needed, and Padikkal को आप फॉर्म में लाने के लिए संजू सैमसन sacrificing his position at number 3. Then Ashwin coming up. ठीक है, आप क्या बोलोगे श्रेयांश भाई? What was your reaction to Ashwin's knock? देखो उस छक्के की वजह से बच गए, अदरवाइज तो अश्विन वाज प्लेइंग स्लो एंड एंटायर मोमेंटम एक्चुअली गॉट किल्ड. उससे बटलर का भी फ्लो जो था वो टूट गया. अदरवाइज सो ओनली बिकॉज ऑफ दोस 2 sixes इन आकाश's स्पेल अश्विन का मतलब अभी अच्छा लग रहा है 22 बॉल में 30 रन, बट अदरवाइज 19 बॉल में 18 रन ही थे. और उस वजह से क्या है, बटलर का भी मोमेंटम छूट गया, तो बटलर ऑल्सो कुडंट यू नो मतलब वापस उसका फ्री फ्लो नहीं आ पाया. तो मेरे को नहीं लगता ऐसे इनको मतलब ये सब चीजें करनी चाहिए. अगर अश्विन को भेजना ही था तो दे ऑल्सो हैव होल्डर, तो कि और बेहतर हिटर है अगर ऊपर भेजना ही हो तो. होल्डर तो पूरा यूजलेस हो जा रहा है, मतलब वो आ रहा है यूजलेस लास्ट. हो जा रहा है. हाँ, 1-2 बॉल मिल रही है उसको, जबकि वो अच्छा हिटर है. मतलब एसआरएच के लिए कुछ मैच में उसने जबरदस्त हिटिंग्स करी है लास्ट में. कुणाल, व्हाट्स योर और शिमरन हेटमायर को ये मतलब इन्होंने मेरे हिसाब से फिक्स कर रखा है कि 18 और 20 बॉल से ज्यादा नहीं खेलना है. मतलब वो नॉट आउट रहा है पूरी आईपीएल में, और हर बार उसकी 15 बॉल 18 बॉल और 30 रन 35 रन फिक्स चल रहा है उसका, हेटमायर का. मुझे गलत लगता है. वो हिटमैन इज अ गुड बैट्समैन. हाँ, players ऐसे हो गए, they're having a very hard time deciding on a proper combination. तो इसलिए I guess they're trying to test out at least tournament के starting में, and maybe एक दो मैच का they'll stop trying out and settle on one team. But I think ठीक है, थोड़ा बहुत they can try out stuff क्योंकि they're winning matches as well, right? अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अश्विन ने यही बोला कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज पैडेड अप, क्योंकि टीम मुझे कभी भी भेज सकती है. तो अगर कोई बैट्समैन होता है उसको तो बार बार तकलीफ आती है कि भाई मेरा पोजीशन क्या होगी, बट मैं तो बॉलर हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है पहले देर से पैड पहन के बैठा हुआ हूँ कि यार भेज दो तो अच्छा ही बैटिंग मिल जाएगी. मुझे क्या लगता है पता है, वो पैड पहन के आ जाता होगा और धमकाता होगा ये संगकारा और ये लोग को कि साले मुझे भेजो बैटिंग. नहीं, वो उसने यही बोला कि लोगों को लगता होगा कि मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को तो जैसा बोला जाता है मैं कर लेता हूँ. सबको लग रहा होगा ये कभी ओपनिंग पे आ गया, कभी 2 डाउन आ गया, कभी 3 डाउन आ गया. बट ही इज बॉलिंग लाइक अ जेम इन दिस आईपीएल. But आज Jadeja also bowled a very good spell. I mean, since that Mumbai match, he I think picked up a lot of rhythm after getting wickets of Tilak Verma and वो दोनों का विकेट जो उसने लिया वानखेड़े में. तो उसके बाद मुझे लगता है जडेजा has got back his rhythm, and today जो आरआर का मोमेंटम लूज होना शुरू हुआ 8 ओवर में 86 बनाने के बाद भी 15 ओवर में 135 ही बने थे, मतलब बहुत कम ही हुए थे. तो वो 7 ओवर में जो जडेजा की बॉलिंग थी, स्पेशली सैमसन को जो बोल्ड किया फर्स्ट बॉल, एंड मतलब दैट वाज जस्ट अमेजिंग स्टफ फ्रॉम जडेजा. बहुत अच्छी बॉलिंग, फास्ट डाल रहा था और पिच से टर्न निकाल रहा था. बहुत मजा आया जडेजा की बॉलिंग देख के भी. बहुत ही बढ़िया. बट hats off to Sandeep Sharma for today's thriller game. साथ में 3 धोनी और जडेजा के अगेंस्ट. इट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई बॉलर डिफेंड कर लेता है. हाँ. और वो भी मतलब जैसे उसने एक ही शॉट चाहिए था. एक ही शॉट चाहिए था 3 बॉल में. और वो भी शुरू में वो पूरा नर्वस था, मतलब उसने ऐसा एक बॉल डाला, पता नहीं क्या बॉल डाला उसने, वो जो ओवर का शुरुआत किया डबल उसने, वाइड जैसा. हाँ, डबल वाइड जैसी बॉल. कुछ वाइड नो भाई, वो नो बॉल नहीं हुआ. मैं तो खुश हो गया, मुझे जो पहले लगा नो बॉल ना देते भाई, फ्री हिट ना देते. फिर थैंकफुली वो वाइड ही था. और उसके बाद बाकी उसने बोला संजू ने कि दिस वाज देयर फर्स्ट विन एट चेपॉक. आरआर हैड नेवर वन एट चेपॉक. second Evan. So out of 8 matches they have lost 6 and this is their second win. एक पहले भी कभी जीते हैं. तो बहुत पहले जीते होंगे मे बी संजू हाँ, सैमसन. बहुत पहले जीते हैं, बहुत पहले जीते. हाँ. Anyways, yeah, I guess ठीक है, आज का मैच तो हो गया. Let's see what we see tomorrow. And 4 days, 4 thrillers by रोज के रोज. IPL is like a factory, it's producing thrillers. और मैंने लास्ट वीक गलती से बोल दिया था यार क्या वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, कुछ थ्रिलर्स लाओ.
और भाई आए या तो देने वाला देता, जब भी देता छप्पड़ फाड़ के Yeah, वही हाल हो गया let's है see what भाई. you ask for next. When it कल rains है it पंजाब वर्सेस pours. गुजरात, कल पंजाब वर्सेस गुजरात है। Let's see. पंजाब गुजरात, ओ भाई I ये want तो सही Punjab मैच होगा. to pull off something, नहीं तो गुजरात जीत जाएगी आराम से. यार गुजरात वाले, वही मैं आज बोल रहा था ना, सबसे बेस्ट उनका है कि दे कीप थिंग्स सिंपल. एंड वही मुझे लगता है आरआर इज अ गुड टीम बट दे डोंट कीप थिंग्स सिंपल. इतना चॉपिंग एंड चेंजिंग, बैटिंग ऑर्डर शफलिंग जो आज किया. बॉलिंग लाइनअप, ट्रेंट बोल्ट एक इंजर्ड क्या हो गया भाई, पूरा ही नया बॉलिंग लाइनअप खेल रहा था आज तो. अमेजिंग मतलब. चलो, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड दैट्स इट थैंक यू, फ्रॉम आवर थैंक एंड. यू। हम तो बैंगलोर जा रहे हैं कल। अच्छा, अरे इसका रिवर्स फिक्सचर का मुझे कंफर्म करो भाई, मुझे फ्लाइट बुक करना है. मैं आऊंगा मैंने बोला ना आपसे मिलने. 24th का बोला हुआ है ना, 24th को अपने को पासेस का पता चलेगा। ठीक है, आप मुझे बताना. आई एम गोइंग टू सपोर्ट आरआर वर्सेस इन आरआर वर्सेस सीएसके. राजस्थान रॉयल्स, हल्ला बोल भाई. कुणाल की कौन सी टीम को सपोर्ट करता है कुणाल? मुंबई आरसीबी। इंडियंस, रोहित शर्मा एंड मुंबई इंडियंस Stay एंड in वड़ा Bangalore, पाव. but ना support Mumbai. मुंबई सुपर फैन है भाई चलो, वो, बहुत बड़ा फैन है मुंबई इंडियंस Season का. 1. अच्छा। और नहीं तो क्या भाई, हमारे कॉलेज में झगड़े हो जाते थे. प्रतीक आरसीबी को सपोर्ट करता था, मैं That तो was राजस्थान fun. को ही करता था उस टाइम. और ये कुणाल मुंबई को सपोर्ट करता था. हम जब कॉलेज में तब तो मुंबई बहुत ही खराब खेलती थी। मुंबई अच्छा खेलने लगी 2013 से। हमारा कॉलेज हाँ 2012 में खत्म हो गया था। हाँ, आप चले गए थे तब. हाँ, Mumbai was not good in उस first समय 2 हम इतना seasons. आईपीएल देखते भी नहीं थे. हम ज्यादा इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप 2011 तक एक्चुअली हम आईपीएल ज्यादा गेम्स देखते भी नहीं थे. Yes. बहुत कम लोग होते थे जो आईपीएल देखते थे उस समय. मुझे याद है कॉलेज में कुछ लोग आते थे जो आरसीबी के जर्सी पहन के, बट आई डोंट हैव. बट 2012 के ऑनवर्ड्स आई थिंक, जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया, उसके बाद आईपीएल का कुछ ज्यादा ही पिकअप हो गया. मतलब वो It did catch on pretty well. क्या Well, कॉट ऑन. folks, yeah, I guess we'll speak tomorrow then. Let's see the matches tomorrow. Ta-ra, बाय good बाय. night. चलो, bye.